Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to continue our fourth chapter from geography and the name of the chapter is climate. So today we are going to continue with the topic factors affecting climate, and in this the subtopic of today's are pressure and winds. So students, pressure and winds are also one of the main factors which affect the climatic conditions. We know that the climate and the associated weather conditions in India are governed by the three systems. Firstly, pressure and surface wind. Second, upper air circulation, and the third, western cyclonic disturbances. So due to these three factors, India's climate generated. Student, India lies in the region of northeasterly winds. What is the meaning of northeasterly winds? The northeasterly wind is also known as permanent wind, and it prevailed in 10 to 30 degree latitude. And we know that our latitudinal extent of India is 8 to 37. So it means some of the region also occurred in this region of easterly winds. Easterly winds is also known as trade winds. And one of the characteristic of this is the permanent winds, which flown in the given particular area, right? So students, these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. ये wind जो है subtropical high pressure belt से originate होती है northern hemisphere में, and they blow southwards, और ये southwards direction की तरफ blow होती है. ये east से इस तरीके से west की तरफ move करती है, right? And it get deflected to the right due to the Coriolis force. और देखो मैंने यहाँ ऐसे ना बना करके इस एरो को थोड़ा बेंड किया है, तो हमारे अर्थ पर ये विंड जो है इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और ये राइटवर्ड इसलिए टर्न हो गई है क्योंकि हमारे अर्थ पर एक फोर्स एप्लीकेबल है जिसे कोरोलियस फोर्स कहते हैं. सर कोरोलियस ने इस फोर्स का इन्वेंशन किया था. तो it moves towards the equatorial low pressure area from the high pressure subtropical zone to the low pressure equatorial zone. So generally these winds carry little moisture. ये wind बहुत ही कम moisture लाती हैं क्योंकि ये land से water की तरफ आ रही है, as they originate and blow over land. So therefore they bring little or no rain. और इस वजह से इन easterlies में या तो बहुत कम या फिर कभी कभार बिल्कुल भी बारिश नहीं होती. तो इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, और इसी वजह से इंडिया में एरिड लैंड ज्यादा है. लेकिन इतना भी नहीं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, बिकॉज द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक. ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया. आपको मैंने क्लास में भी बताया था 5 क्लास के दौरान कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है. क्यों होती है? क्योंकि हाई प्रेशर में हैवी विंड होती है और लो प्रेशर में लो, राइट? तो हमेशा हैवी से लो की तरफ मूवमेंट होता है. और यहाँ भी क्या है कि हाई प्रेशर वाले रीजन से हाई प्रेशर कहाँ जनरेट होता है हमारा विंटर्स में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं. तो एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, और इसकी वजह से कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है. और अगर हम समर सीजन में बात करें तो जहां पर विंटर सीजन में हाई प्रेशर जनरेट होता है वहां समर सीजन में बनता है लो प्रेशर, और इस बार हाई प्रेशर होता है इक्वेटोरियल एरिया पर, और हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं लो प्रेशर की तरफ. तो Southern Indian Ocean in a southeasterly direction cross the equator
and then turns into towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. And now this is the regulatory concept of the monsoon, which is arrived in the land part of India. So these are known as the southwest monsoon winds, and these winds blow over the warm ocean and it gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India, right? और साथ ही हमने एक बात की थी अपर सर्कुलेशन की. Yes, of course. The upper circulation in this region is dominated by the westerly flow. वेस्टर्नी विंड से एक अपर सर्कुलेशन जो है वो डोमिनेट होता है और इस अपर सर्कुलेशन को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम. ये जेट स्ट्रीम जो है ये सर्कुलेशन 27 से 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर देखने को मिलता है और इसीलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है. स्टूडेंट, पहली बार इस जेट स्ट्रीम का इवोल्यूशन या इसकी खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी. The westerly cyclonic disturbance appeared in the north and the northwestern part of country and it brought in by this westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north of the Himalaya with the apparent movement of the sun. और क्योंकि ITC-Z का मूवमेंट होता है उस तरीके से वेस्टर्ली का भी मूवमेंट होता है. तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम called the subtropical easterly jet stream blow over the peninsular India. समर सीजन में इसका मूवमेंट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ सन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया. जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट है जो हाई एल्टीट्यूड पर 12,000 मीटर के ऊपर नजर आता है और लगभग ये 110 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 184 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक इसमें हवाएं चलती हैं. समर में 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर में इसकी रफ्तार और बढ़ जाती है 184 किलोमीटर पर आवर. A number of separate jet stream have been identified. अभी तक बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स का पता चला है and the most constant are the mid latitude and the subtropical. और इनमें से ज्यादातर कांस्टेंट जो हमेशा बनी रहती है वो मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. फिर एक कहा था हमने थर्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, राइट? तो क्या होते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर द वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ. विंटर मंथ का वेदर फिनोमिना होता है वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. इसमें मेडिटेरियन रीजन से वेस्टर्ली फ्लो स्टार्ट होती है एंड दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ. और इस सर्दियों में ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो वेदर है उसको प्रभावित कर देता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मॉनसून के सीजन में आते हैं एंड एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर एज वेल. So and are the part of the easterly flow. And these disturbances affect the coastal regions of the country. और बेसिकली वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से कोस्टल रीजन्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जिनकी वजह से इंडिया में स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, राइट? So this is all about the factor which affect the climate of India, and in this we are already discussed the pressure wind, the upper air circulation and the western cyclonic disturbance. Now let's move to the Indian monsoon. Bharatiya monsoon. As we know that the climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून विंड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है. The sailors who came to India in the historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. वो sailors जो समुद्री यात्राएं करके इंडिया आते थे हिस्टोरिकल टाइम में, उन्होंने सबसे पहली बार इस मॉनसून फिनोमेना की खोज की एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम. और उन्होंने नोटिस किया कि जब विंड सिस्टम रिवर्सिंग होता है तो उससे वापसी में जहाज लेकर के जाने में काफी मदद मिलती है. अगर हवा के डायरेक्शन को फॉलो किया गया तो फॉर दैट सिस्टम दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स. और इसीलिए वो जब भी
विंड का सिस्टम है उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंग ही सेलिंग करना उन्होंने शुरू किया, नाव चलाना शुरू किया। The Arabs who had also come to India as traders named the seasonal reversal of the wind system monsoon. Arabs जो इस रीजन में ट्रेड के लिए आए थे उन्होंने पहली बार इस सिस्टम को आइडेंटिफाई किया और इसको नाम दिया मॉनसून। So the monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 to 20 degree north south latitude. नॉर्मली जो मॉनसून सिस्टम है ये एक्सपीरियंस किया जाता है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूडनल एरिया के बीच में, और इस मॉनसून के आने का एक मैकेनिज्म तैयार होता है। और यहाँ पे हम उन 5 मैकेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि इंडिया में मॉनसून आने का रीजन क्या है। फर्स्टली द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ 29% लैंड और लगभग 71% वाटर से कवर्ड है, राइट? तो या तो हम साइंटिफिकली ये मान लें कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है वो जल्दी से गर्म होता है और लिक्विड पार्टिकल को गर्म होने में टाइम लगता है। सॉलिड पार्टिकल जल्दी क्यों? क्योंकि इसके सबके मॉलिक्यूल्स जो है पास पास हैं, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी होता है। जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिफरेंशिएटिंग होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उसमें हीट को ट्रांसफॉर्म होने में समय लगता है। एक चीज ये, या फिर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ लें कि 71% वाटर है और 29% लैंड है, तो जो चीज ज्यादा है उसको समय लगेगा गर्म होने में और जो चीज कम है वो जल्दी गर्म होगी। तो यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट है? जो चीज जल्दी गर्म हुई वहां पे हवा हल्की हो गई और इट क्रिएट लो प्रेशर, और जो चीज देर से गर्म हुई वहां पर हवा जो है वो भारी रही, ठंडी रही, तो वहां पर होता है हाई प्रेशर। और मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं। तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? इंडियन लैंड मास पर, और हाई प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है सी पर, क्योंकि हमारा इंडिया 3 साइड से वाटर कवर्ड है। तो पहला रीजन ये, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, ये अपने साथ मॉनसून लेकर के आती है। सेकेंड, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे हम ITCZ भी कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर और इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में एक कन्वर्जन जोन क्रिएट होता है। ट्रॉपिकल से हवाएं नीचे आ रही हैं, ईस्टर्ली विंड इस तरीके से इक्वेटर की तरफ, तो ये जो एरिया है ये एरिया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है। इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ सन इससे होता है। सो इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजिशंस अबाउट द 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर। ये समर सीजन में यानी कि अप्रैल से जून के बीच में जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है, तो ये ITCZ 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री जो भी है, ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, राइट? अब जहां पर सन है वहां गर्मी ज्यादा, और जहां गर्मी ज्यादा वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये भी अपने आप में एक रीजन बन जाता है इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। वहीं अगर हम अफ्रीका के पास में देखें तो इंडियन ओशन वाला सारा हिस्सा हाई प्रेशर एरिया कहलाता है, क्योंकि ITCZ तो शिफ्ट हो गया कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो ऑब्वियस है कि नीचे का हिस्सा ITCZ है, नीचे का हिस्सा हाई प्रेशर जोन है। तो द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बना तो यहाँ से ऑब्वियस है कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, राइट? थर्ड है द तिब्बतियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड।
इस समय में ड्यूरिंग समर तिब्बत प्लेटू बहुत गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके रिजल्ट के तौर पर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स क्रिएट होती हैं एंड इट फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट द अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी। और इस एरिया में 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल यानी कि नियरली 9000 मीटर अबव द सी लेवल द लो प्रेशर जोन क्रिएटेड। एंड लास्ट, मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of the Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula। जहाँ एक तरफ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, कहाँ से? नॉर्थ से, वेस्टर्न से, और एक तरफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन रही है इंडियन पेनिनसुला पे। तो इनके वजह से भी सर्दियों में और गर्मियों में बारिश के आसार बनते हैं, जिसे हम मानसून का आना और मानसून का विड्रॉल कहते हैं। तो these 5 are the mechanism which control the monsoon system of India। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ITCZ को, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में एक लो प्रेशर का ट्रफ बनता है एंड दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। और ये वही एरिया है जहाँ पर एक तरफ से साउथ ईस्ट और एक तरफ से नॉर्थ ईस्ट दोनों विंड्स आकर के कन्वर्ज होती हैं। तो इस एरिया को कन्वर्जन जोन कहा जाता है। तो दीज जोन्स लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। ये आमतौर पर ये जोन जो है कन्वर्जन जोन पैरेलली होता है इक्वेटर के, और इसमें एक एपेरेंट मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सन। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है तो ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, और जब सब उनका मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ होता है तो ये ITCZ भी शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ। So hope you guys understand the ITCZ once again and very clearly. Now, apart from this, it has also been noticed that changes in pressure conditions over the southern ocean and also affect the monsoon. इन सब के अलावा प्रेशर कंडीशन में बदलाव होने के कारण, साउदर्न ओशियन के प्रेशर कंडीशन में बदलाव होने के कारण भी हमारे इंडियन का मॉनसून सिस्टम क्रिएट होता है। तो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, राइट। तो इन सर्टेन इयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर। कुछ सालों से हम लोग एक रिवर्सल देख रहे हैं इस पूरे प्रेशर सिस्टम में, और एक कंडीशन बनती जा रही है ईस्टर्न पैसिफिक लोअर प्रेशर की इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो this periodic change in pressure condition is known as the southern oscillation or INSO। क्या होता है? नॉर्मली तो मॉनसून सिस्टम काफी अच्छे से वेल मैकेनिज्ड तरीके से प्रिवेल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सालों में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और पेरू के तट पर अचानक से लो प्रेशर हो जाता है, और इस सारे सिस्टम को कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन, जिसे सो भी कहा जाता है। तो द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, कहाँ होता है डिफरेंस? पैसिफिक ओशियन में 18 डिग्री साउदर्न और 149 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, एंड डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वहीं डार्विन आइलैंड है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहाँ इंडियन ओशियन में ये एरिया है 12 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ और 131 डिग्री ईस्ट। तो इस कंपाउंडेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। इस साउदर्न ऑसिलेशन से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मॉनसून की इंटेंसिटी कैसी रहेगी। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होगा तो ये प्रेडिक्ट करवाएगा कि मॉनसून एक तो बिलो एवरेज आएगा और लेट आएगा। A feature connected with the SO is the El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of cold Peruvian current. So every year, every 2 to 5 years, the changes in pressure condition are connected to El Nino. Hence, it is also referred to as INSO, El Nino Southern Oscillation, right? तो ये अल नीनो क्रिएट होता है हर 2 से 5 सालों में, और इसका असर क्या होता है? पेरू के तट पर अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं जो लैंड एरिया पर काफी ज्यादा बारिश क्रिएट करती है, जिससे एक पहले तो लैंड एरिया
लो प्रेशर जोन में क्रिएट होता है। अटाकामा डेजर्ट के पास वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, वहां पर लो प्रेशर बनता है तो समुद्र से हवाएं वहां जानी शुरू हो जाती है, यानी कि एक ब्रांच जो है मॉनसून की वो शिफ्ट हो जाती है पेरू पर और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के लिए जिम्मेदार होती है और इस वजह से मॉनसून के आने में देरी संभव हो जाती है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक द लाइव क्लास। नाउ द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल। अब मॉनसून का आना और उसका मैकेनिज्म तो समझ में आ गया। मॉनसून का बने रहना और उसका वापस लौटना भी एक अपने आप में मैकेनिज्म है, एक अपने आप में सिस्टम है। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टडी। जैसे कि व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही भारत का मॉनसून भी एक जैसा नहीं रहता। इसमें भी पल्सेटिंग है नेचर में ही। It affected by the different atmospheric condition and encountered by it. So on its way over the warm tropical seas, the duration of monsoon is between 100 to 120 days. वैसे नॉर्मली हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ट्रॉपिकल सीज के आसपास के वार्म एरिया की वजह से जो ड्यूरेशन होता है मॉनसून का वो 100 से 120 दिन का होता है, यानी कि इट्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली जून टू मिड सितंबर. This is the arrival period of monsoon, and the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. अब अराइवल के बाद में अगर कुछ दिनों तक अचानक से सडन चेंज आए और बहुत दिनों तक बारिश होती रहे तो वो बर्स्ट कहलाता है, मॉनसून बर्स्ट, and can be distinguished from the pre-monsoon showers. So the monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. साउदर्न टिप यानी कि सबसे पहली बार केरल में मॉनसून का आगमन हो जाता है जून के पहले वीक में, 1 से लेकर के 7 जून के बीच में. एंड इट प्रोसीड्स इनटू 2 ब्रांचेस, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई एंड अबाउट 10 डेज. अब ये जो पहली बार मॉनसून आया है, इस मॉनसून को केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक पहुंचने में लगभग 10 दिन का समय लगता है और ये अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक महाराष्ट्र को टच करता है. तो दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली. ये भी आगे बढ़ती है और ये सबसे पहली बार अराइव होती है असम में, यानी कि ये साउदर्न एरिया से पैरेलल चली जाती है और फिर माउंटेनियस रीजन होने के कारण मेघालय वाला एरिया ये आसाम से टकराती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. एंड द लूफी माउंटेनियस कॉज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. और ये फिर लूफी माउंटेन्स इसका रास्ता बदलते हैं और इस ब्रांच को गंगा प्लेन की तरफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर द सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. मिड जून में पहुंचता है. एंड द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन. और फिर दोनों तरफ से ये ब्रांचेस मर्ज हो जाती हैं गंगा प्लेन पर. So Delhi generally receive the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June. दिल्ली को मॉनसून शावर मिलता है जून के एंड में बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से. एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान दे एक्सपीरियंस द मॉनसून. यहाँ पर आ जाता है पहली वीक ऑफ जुलाई में. एंड मिड जुलाई इट रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो ये है पूरा मॉनसून का आना, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया. नाउ द विड्रॉल. मॉनसून आने के बाद कुछ समय रुक करके वापस भी जाता है, जिसे विड्रॉल या रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून कहते हैं. ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. द विड्रॉल ऑफ मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट. शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से लौटना. और कब शुरू हो जाता है? अर्ली ऑफ सितंबर. बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली. और मिड अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर के लगभग, ये पूरी तरीके से इंडिया से चला जाता है फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ. कहाँ से? नॉर्दर्न हाफ की तरफ से ऑफ द पेनिनसुला. द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला इज प्योरली रैपिड. बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून हैज विड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ. और लगभग अर्ली दिसंबर तक पूरी कंट्री से ये मॉनसून पूरी तरीके से विदा हो जाता है. बट डू यू नो दैट द एंटायर इंडिया रिसीव्स द rainfall in the summer monsoon, but area
which is called the Coromandel coast, they experience the rainfall due to the reversal, due to the withdrawal system. The island received the very first monsoon showers. वैसे तो इंडिया में सबसे पहली बार जो मॉनसून शावर रिसीव करते हैं वो है अंडमान निकोबार एंड बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही सबसे पहली बार आ जाता है मॉनसून. एंड द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द मंथ नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा मॉनसून लौटना शुरू करता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. एंड बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर. और इसी समय में बाकी पूरा जो हिस्सा है वहाँ पर विंटर मॉनसून जो है अपना कदम बढ़ा रहा होगा. ठीक है, तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर मॉनसून मैकेनिज्म of India very well. In my next video, I will going to explain about the seasons of India. Till then, thank you and have a nice day.